بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بڑے شہر کی بہتری کے لیے بڑی بیٹھک ہو گئی۔ سٹی کونسل کے اجلاس میں 3 بڑی قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ بلدیہ عظمیٰ ملازمین کے 11.5 ارب روپے واجبات کی ادائیگی کی قرارداد منظور۔ 246 یونین کمیٹیوں کو 3 کروڑ روپے کے فنڈز دینے کی بھی منظوری۔ میونسپل چارجز اور ٹیکس کی بجلی بلوں کے ذریعے وصولی کی قرارداد بھی منظور۔ جماعت اسلامی نے میئر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم نے میونسپل ٹیکس کی کہ الیکٹرک کے بلوں میں وصولی کراچی دشمنی قرار دے دی۔ اجلاس کے دوران تحریک انصاف اور منحرف ارکان آپس میں لڑ پڑے۔ سٹی کونسل کا اجلاس میئر کراچی کی زیر صدارت شروع ہوا تو ماحول پہلے سے بہتر دکھائی دیا۔ تاہم کہ الیکٹرک کے بل کے ذریعے میونسپل چارجز وصول کرنے کی قرارداد پیش ہوئی تو ایوان ایک بار پھر بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ اجلاس میں 2 جماعتوں کے ارکان کے درمیان ہلڑ بازی جاری رہی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے میئر کراچی پر شدید تنقید کرتے ہوئے مرتضی واب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا۔ بولے، سٹی کونسل کے اجلاس کو چلانے کی پوری کوشش کی لیکن میئر کا رویہ قوم کے سامنے ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے میئر کو گھر بھیجیں گے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے حافظ نعیم الرحمان کو ترکی و ترکی جواب دیا۔ کہا جماعت اسلامی عدم اعتماد لے کر آئے، مقابلہ کریں گے۔ جماعت اسلامی آج کے اجلاس میں کیوں تحریک عدم اعتماد لے کر نہیں آئی؟ ایوان نے بلدیاتی ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کے لیے سندھ حکومت سے 11.5 ارب روپے بیل آؤٹ پیکج دینے کی قرارداد متفقہ اور فی یو سی 3 کروڑ روپے دینے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی، جبکہ ایم سی کی دکانوں کا کرایہ 75% بڑھانے کے خلاف اپوزیشن کی قرارداد کثرت رائے سے مسترد کر دی گئی۔ میونسپل چارجز کے صرف 200 روپے وصول کیے جائیں گے۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے واضح کر دیا، دعویٰ کیا۔ حافظ نعیم نے ایوان میں اشارہ کر کے شور مچوایا۔ ایوان سب کا ہے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ناقدین تعمیراتی کام پر توجہ نہیں دیتے۔ نجمی عالم کی شہر کی ترقی کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر کام کرنے کی دعوت۔ حافظ نعیم الرحمان نے رائے شماری کے بغیر قرارداد کثرت رائے سے منظور کیے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ سٹی کونسل اجلاس میں ہنگامہ خیزی تھم نہ سکی۔ حافظ نعیم نے مرتضی واب کو ہٹانے کی تیاری شروع کر دی۔ سٹی کونسل اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم نے دعویٰ کیا کہ آئندہ میئر کراچی کا تعلق جماعت اسلامی سے ہوگا۔ حافظ نعیم نے بجٹ اور یوٹیلیٹی ٹیکس کے حوالے سے اپنے تحفظات بتائے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ فسطائیت اور وڈیرا سوچ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ بات عدم اعتماد کی طرف جائے گی اور جب جائے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ان کے لیے ہوگی اور انشاءاللہ پھر تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ عدم اعتماد کے حوالے سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ عدم اعتماد کی ہم موو نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ضابطے کے مطابق، قانون کے مطابق سیدھا طریقے سے چیزیں چلائی جائیں اور پھر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہی میئر ہوگا اور انشاءاللہ تعمیر و ترقی کا سفر پھر سے شروع ہوگا۔ دوسری جانب ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے کہا، ایک بار پھر جماعت اسلامی کو ساتھ چلنے کی دعوت دی اور بولے انہیں بس کے الیکٹرک کی جانب سے ٹیکس جمع کرانے پر اعتراض ہے۔ جو چیزیں طے تھی اس پر بات تو کرتے، مگر بس ان کو ایک ہی مسئلہ ہے کہ الیکٹرک سے کیوں آپ یہ ریونیو جنریٹ کرنے، تو اس میں یہ کہ شہر کا سب سے زیادہ کنزیومر کے الیکٹرک کا ہے، تو اس لیے اس سے ہم پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نجمی عالم نے کہا کہ میئر کراچی نے حافظ نعیم الرحمان کو ویلکم کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حافظ صاحب نے خود اشارہ کر کے شور مچوایا۔ میئر صاحب نے بڑے تحمل سے ہر بات کا لیگل جواب دیا، قانون کے مطابق جواب دیا۔ ان کو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم نے صرف اکثریت کی بنیاد پہ ہاؤس چلانے کی کوشش کی، ہم کنسنسس سے چلانا چاہتے ہیں اور میں مسلم لیگ نون، جے یو آئی کے دوستوں نے، پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر نے بھی اچھی باتیں کی اور ہم اس شہر کی ترقی کے لیے پھر آفر کرتے ہیں کہ بار بار آئیں، بیٹھیں اور اچھی تجاویز دیں، سیاسی تقریریں نہ کریں۔ سٹی کونسل میں حکومت اور اپوزیشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن دوسری جانب کھلے مین ہولوں، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور ابلتے گٹروں سے تنگ کراچی کی عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے پریشان ہے۔ کیبینہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شعیب مختار کے ہمراہ جنید جاوید، سٹی 21۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر تعلیمی بورڈز کے چیئرمین کا چارج کمشنرز کو دے دیا گیا۔ کراچی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے چیئرمین شپ کمشنر کراچی سلیم راجپوت کو سونپ دی گئی۔
निगरान वज़ीर-ए-आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सक्खर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन का चार्ज कमिश्नर सक्खर फयाज अब्बासी को दे दिया है। सक्खर बोर्ड की चेयरमैन रफ़ीक भल 16 जून को रिटायर्ड हो गए थे। कराची इंटर बोर्ड की चेयरमैन का चार्ज सलीम राजपूत को सौंप दिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची की पोस्ट 23 नवंबर से खाली थी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने तालीमी बोर्ड शहीद बेनज़ीर आबा के चेयरमैन की चार्ज वाइस चांसलर सुकरण यूनिवर्सिटी से वापस लेकर कमिश्नर के सुपुर्द कर दी। वज़ीर-ए-आला की कमिश्नरान को तालीमी बोर्ड की फौरी चार्ज लेकर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट भेजने की हिदायत। सिंध के निगरान वज़रा ने महकमा तालीम से करप्शन फौरी ख़त्म करने से माज़रत कर ली। वज़ीर तालीम कहती हैं कि थोड़े अरसे में करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं। महकमे में मजीद असातिज़ा की भर्ती अदालत की वजह से रुकी हुई है। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत ने महकमा तालीम सिंध से फौरी करप्शन के खात्मे को मुश्किल करार दे दिया। सिंध असेंबली की कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महकमा इत्तलात और महकमा तालीम के वज़रा ने कहा कि महकमा तालीम में लातादाद मसाइल हैं। करप्शन को ख़त्म करना आसान नहीं है। वज़ीर तालीम राना हुसैन ने कहा कि मुल्क में यकसां तालीमी निसाब नाफिज नहीं हो सकता, अलबत्ता कुछ मज़ामीन यकसां हो सकते हैं। जिन स्कूलों में पोलिंग स्टेशन कायम होने हैं उनकी मरम्मत का काम जारी है। मैंने का डेटा ये बता रहा है कि हमारे पास 2 लाख के करीब असातिज़ा हैं, तो फिर हमारा तालीमी मयार क्यों ख़राब है? देखिए, असातिज़ा का होना काफ़ी नहीं होता, किस किस्म के असातिज़ा अपॉइंट हुए हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है। हमें फ़ख्र से कहना पड़ता है कि जो अभी 54,000 इंडक्ट किए गए हैं प्राइमरी में और एलिमेंट्री में टीचर्स, वो क्वालिफाइड हैं। काफियों से हम मिल चुके हैं और उनकी भी हमने एक छोटी सी ट्रेनिंग कराई। वज़ीर इत्तलात और अक़लियती उमूर अहमद शाह का कहना था कि निगरान वज़रा अवाम के हर सवाल के जवाब दे हैं, वज़रा सवालों से नहीं भागेंगे। पहले दिन गया प्रेस क्लब, क्योंकि मैं तो तुम सबसे सीनियर हूँ, 1981 से ये मेरा ठिकाना था, तो मैंने एक ऐलान किया था जाके कि मैं इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर हूँ, डिसइंफॉर्मेशन का मिनिस्टर नहीं हूँ। और मैंने ये कहा था कि आप तमाम जो हमारे मिनिस्टर हैं वो बैठेंगे और जो सवाल होंगे वो ज़्यादा जानते हैं या बीट रिपोर्टर ज़्यादा जानता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शीरीन नारेजो ने कहा कि IBA पास मजीद असातिज़ा की भर्तियों का मामला अदालत की वजह से रुका हुआ है। इस मकसद के लिए एडवोकेट जनरल को हिदायत दी गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कैमरा और दीगर आला की खरीदारी पर महकमे मनसूबाबंदी और तरक्की और NRTC के निर्खों पर इख्तलाफात सामने आ गए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर टेक्निकल कमेटी कायम कर दी है। कराची शहर को महफूज बनाने के लिए इजलास की अंदरूनी कहानी। सिटी 21 इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ अशिया की कीमतों पर इख्तलाफ हो गया। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट NRTC के रेट्स पर इतफाक न हो सका। महकमा प्लानिंग के मुताबिक NRTC ने कैमरों और सॉफ्टवेयर की कीमत बहुत ज़्यादा लगाई है। निगरान वज़ीर-ए-आला ने वाज़ेह किया कि सिर्फ सॉफ्टवेयर की खरीदारी के लिए 84 मिलियन गैर माकूल रकम है। निगरान वज़ीर-ए-आला ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर टेक्निकल कमेटी कायम कर दी। कमेटी प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर और दीगर सामान की कीमतों का जायज़ा लेगी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने बढ़ती महंगाई के पेश नज़र प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दी। कमेटी मुख्तलिफ जामियात से अपने अरकान का इंतखाब करेगी। के निगरान सिंध हुकूमत समंदर के पानी को मीठा करने के मंसूबे की जल्द तकमील के लिए मुतहरिक हो गई। निगरान वज़ीर सेहत का मनोड़ा के जजीरे पर खारे पानी को मीठा करने के प्लांट का दौरा। प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई है। मज़ीद तफसीलात आइमा खान की रिपोर्ट में। समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाने का मंसूबा। मनोड़ा के जजीरे पर पीने के पानी की फराहमी के लिए वज़ीर सेहत सिंध मैदान में आ गए। साद खालिद न्याजी ने खारे पानी को मीठा करने के प्लांट्स के मुआयने के दौरान इसकी इस्तेदाद और सलाहियत पर इजहार ख्याल किया। वाटर डिसलिनेशन प्लांट की तनसीब से हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल मनोड़ा आइलैंड और मुल्हिका आबादी को पीने का पानी मुयस्सर आएगा। निगरान वज़ीर सेहत का कहना है कि 2016 में प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था, लेकिन ताहाल इसे मुकम्मल नहीं किया गया। उम्मीद है प्रोजेक्ट की जल्द तकमील से आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। 2016 में ये प्रोजेक्ट जो है ना वो कमीशन हुआ था
اور 2016 سے یہ پروجیکٹ مختلف مراحل میں زیادہ تر ٹائم پہ پراپر کمپلیشن کی طرف نہیں گیا. اس علاقے میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے, اچھی بڑی پاپولیشن ہے, اور اس کے لیے یہ پلانٹ تقریباً 500,000 گیلنز پر ڈے کا تھا, جس سے کہ ظاہر ہے آبادی کو بہت فائدہ ہو جاتا اور ضروری بھی ہے یہاں پہ ہونے کا. کراچی کے جزیروں پر بسنے والوں کو صاف پانی کی فراہمی کے اقدام کو شہریوں نے خوش آئند قرار دیا. کیمرہ مین قیوم شیخ کے ساتھ آئمہ خان, سٹی 21. اور ناظرین, موسم سرما میں بھی کراچی میں پانی کا بحران سنگین ہو گیا. ماڑی پور میں گزشتہ 12 سالوں سے پانی کی عدم فراہمی ہے. مکینوں کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. رپورٹ کریں گی آئمہ. ماڑی میں ہاکس بے سمندر کے قریبی آبادیاں بھی بوند بوند کو ترس گئیں. ماڑی پور کے مکین گزشتہ 12 سالوں سے پانی کی عدم فراہمی کا شکار ہیں. علاقہ مکین کہتے ہیں متعلقہ محکموں نے ہمیں ٹینکرز مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. مہنگائی کے اس دور میں پانی بھی خرید کر استعمال کر رہے ہیں. 2000 سے یہ پانی کا مطلب شروع میں ہمارے کو دیتے تھے 1 گھنٹہ پانی, اس کے بعد ان لوگوں نے آدھا گھنٹہ کر دیا, اور پھر اس کے بعد تقریباً ہفتے کا ٹائمنگ دے دیے, پھر 15 دن کا ٹائمنگ دیا, اور ابھی جو ہے ہمارے پاس ٹینکر مافیا چل رہے ہیں. دیکھیں یہاں پانی تو تقریباً ہم 20 سال سے یا ہم نے نہیں دیکھا ہے, چونکہ یہ پیچھے جو ہے کچھ 1-2 علاقے ہیں ان میں پانی آتا ہے, تو وہ بھی برائے نام آتا ہے. سمجھو وہ آپ یہ کہہ لیں کہ پورے سال اگر آتا بھی ہے کیلکولیشن کرے تو 6 گھنٹے پانی آتا ہے. علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ علاقے میں جلد از جلد پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ آئمہ خان, سٹی 21 نیوز. میئر کراچی مرتضی وہاب کے نوٹس کے بعد نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے UC1 سیکٹر 7D2 میں سیوریج نظام کی بہتری کا کام شروع کر دیا گیا. واٹر کارپوریشن کے انجینئر کہتے ہیں کہ عوام سیوریج لائنوں میں کچرا ڈالتی ہے جس سے لائنیں بیٹھ جاتی ہیں. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. نارتھ ناظم آباد UC1 سیکٹر 7D2 میں ایک ہفتے سے سیوریج کا مسئلہ رہا. چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن مرتضی وہاب کی ہدایت پر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ٹیم نے علاقے کا دورہ کیا اور نظام کے اوور فلو کا ذمہ دار عوام کو ہی قرار دے دیا. انجینئر ذیشان احمد بولے, عوام سیوریج لائنوں میں کچرا ڈالتی ہے جس سے پورا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. مطلب ہوا یہ ہے کہ جب پانی کا دباؤ جو تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بعض جگہ پر جو ہے لائن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. یہ اکثر ہیوی ٹریفک چل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے لائن ڈیمیج ہو جاتی ہے, جہاں پر وہ کھڈا پڑ جاتا ہے. تو مگر ابھی یہاں پر تو یہ پوزیشن نہیں ہے, یہاں کھڈا پڑا تھا, مگر بھائی تباہ کی بات ہے یہاں سے یہ لائن ڈیمیج ہو گئی ہے. تو ہم نے اپنے ایکسین کو جو ہے بتا دیا ہے, تقریباً 80 فٹ کا ٹکڑا ہی ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے سے سیوریج کے ناکارہ نظام نے ناک میں دم کر رکھا تھا. واٹر کارپوریشن کے عملے نے لائن تو کلیئر کر دی, مگر خدشہ ہے کہ نکاسی آب کا یہ نظام پھر مفلوج نہ ہو جائے. تقریباً ایک ہفتے سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے سیوریج کی, اور اس کی جو ہے نا بڑا گندگی کچرا یہ وہ, لیکن جو ہے نا واٹر کارپوریشن کا بے حد مشکور ہیں ہم, جو انہوں نے جو ہے نا تقریباً یعنی کہ ہر دفعہ میں صفائی کروائی, یہ کروائی. یہ صورتحال تقریباً سمجھے 4-5 دن ہو گئے تھے, اور ایک دفعہ بیچ میں جو ہے آپ کے واٹر بورڈ کے جو لوگ ہیں انہوں نے آ کے کوشش بھی کی تھی اس کو کھولنے کی. پھر یہ کہ ہم نے یہ کمپلین کی تھی ٹاؤن آفس میں, تو انہوں نے بھی ایفرٹ کیا, انہوں نے بھی لوگوں سے بات کی ہے شاید, اور الحمدللہ اس وقت تو یہ کلیئر ہو گیا ابھی فی الحال. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے عملے نے لائن کلیئر کرنے کے لیے جیٹنگ مشین اور عملے کی مدد سے مینول صفائی کر کے سیوریج لائن کو کلیئر کیا. کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. شہر میں پارکنگ مافیا کو لگام دینے کے لیے تاجر برادری نے مطالبات پیش کر دیے. پورے شہر میں پارکنگ فیس یکساں مقرر کرنے کا مطالبہ. صدر آل کراچی جیولرز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے کمشنر کراچی کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جائے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. شہر قائد میں پارکنگ مافیا کا راج, تاجر برادری کا بڑا مطالبہ. روشنیوں کے شہر میں پارکنگ مافیا سے تنگ تاجر بول اٹھے. صدر آل کراچی جیولرز مینوفیکچر ایسوسی ایشن حسین قریشی نے مطالبہ کیا کہ شہر بھر میں پارکنگ فیس یکساں وصول کی جائے. اسٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے کمشنر کراچی کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جائے تاکہ مافیا کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کا ایک طریقہ کار ہے, اگر ایک سسٹم بنانے پہ حکومت آئے تو کمشنر کراچی کی سربراہی میں پہلے بھی ایک مینجمنٹ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کے نام سے ایک بورڈ بنا تھا جس میں مختلف ادارے موجود تھے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو فعال کر کے تاجروں کو بھی اس میں نمائندگی دی جائے.
हुसैन कुरैशी ने शिकवा किया कि पार्किंग माफिया की मनमानी उरूज पर पहुंच गई। 50 से 100 रुपए तक पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। मौसर निजाम न होने से मार्केटों के बाहर पार्किंग मजबूरी है क्योंकि मुतबादिल ही मौजूद नहीं। ये जो पार्किंग माफिया है अपनी मनमानी किस तरीके से करती है, कहीं 50 रुपये लिए जा रहे हैं, कहीं 20 रुपये लिए जा रहे हैं, कोई एक फ़िक्स नहीं है। और हमने देखा 100 रुपये तक ये कीमतें मुख्तलिफ एरियाज़ और जगहों को देख के वहाँ से वसूल की जाती हैं। ताजिर बरादरी का मुतालबा है कि शहर में पार्किंग का मौसर निज़ाम वाज़ा किया जाए ताकि शहरी सुकून के साथ बगैर गैर कानूनी चार्ज अदा किए खरीदारी कर सके। कैमरामैन अहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, कराची में लूट मार की वारदातों की शरह रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। शहर का कोई इलाका भी स्ट्रीट क्राइम से महफूज नहीं। गाड़ी की चोरी से मोबाइल फ़ोन छीनने तक की वारदातों में गुज़श्ता साल की निस्बत 2023 में इजाफा देखा गया। कराची के किस ज़िले में स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत हाल रही, दिखा रहे हैं मेराज अख्तर अपनी रिपोर्ट में। एक और साल मजीद बुरा हाल। बात हो रही है रोशनियों के शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल की। साल 2023 में भी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों के बाद भी शहर कायद में लूट मार और छीना झपटी के वाक़यात में कमी आने के बजाय मजीद इजाफा देखा गया। साल 2023 के 11 माह के दौरान कराची में स्ट्रीट क्राइम की 82,647 वारदातें रिपोर्ट हुई। जिला वस्ती छीना झपटी की वारदातों में सरे फहरिस्त रहा है, जहां 11 माह के दौरान 19,653 वारदातें हुई हैं। यहाँ 6,876 मोबाइल फोन्स, 1,422 मोटरसाइकिलें और 21 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीनी गईं। शहरियों की 10,711 मोटरसाइकिल और 623 गाड़ियां चोरी भी की जा चुकी हैं। जिला कोरंगी 15,482 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर है। जिले में शहरी रहजनों के हाथों 3,771 मोबाइल फोन्स, 953 मोटरसाइकिल और 11 गाड़ियों से महरूम हुए। शहरियों की 10,561 मोटरसाइकिलें और 186 गाड़ियां भी चोर ले उड़े। जिला शर्की में 15,270 वारदातें रिकॉर्ड हुई। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने असलहे के जोर पर 5,022 मोबाइल फोन्स, 1,035 मोटरसाइकिल और 58 गाड़ियां छीनी। चोरों ने भी शहरियों को 8,698 मोटरसाइकिलों और 457 गाड़ियों से महरूम किया। मलीर स्ट्रीट क्राइम के लिहाज से 12,306 वारदातों के साथ चौथे नंबर पर है, जहां मोबाइल फोन छीनने की 3,498, मोटरसाइकिल छीनने की 1,959 और गाड़ी छीनने की 103 वारदातें हुई। जिला मलीर में ही शहरियों ने गाड़ी चोरी की 272 जबकि मोटरसाइकिल चोरी की 6,474 शिकायत दर्ज कराईं। जिला गरबी में मजबूरी तौर पर 10,293 वारदातें सामने आईं, जहां शहरी असलहे के जोर पर 2,868 मोबाइल फोन्स, 1,001 मोटरसाइकिलों और 34 गाड़ियों से महरूम किए गए, जबकि चोरों ने भी शहरियों की 6,301 मोटरसाइकिलों और 76 गाड़ियों पर हाथ साफ किया। शहर के कारोबारी मराकज ओल्ड सिटी एरिया के अलावा रेड जोन और पोश इलाकों पर मुश्तमिल 2 अजला जुनूबी और सिटी में भी स्ट्रीट क्राइम की रिपोर्ट होने वाली वारदातों की मजमूई तादाद 9,643 रही। दोनों अजला में शहरियों से 3,957 मोबाइल फोन्स, 11 गाड़ियां और 187 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। चोर भी 5,236 मोटरसाइकिलें और 252 गाड़ियां लेकर रफू चक्कर हुए। रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2022 में इसी अरसे में रिपोर्ट की गई वारदातों की तादाद 80,815 थी, जबकि रवां बरस अब तक लगभग 2,000 वारदातें ज्यादा रिपोर्ट की जा चुकी हैं। मेराज अख्तर, C21। पहली बीवी के होते दूसरी शादी शौहर को महंगी पड़ गई। पहली बीवी से धोखे ने शौहर को जेल पहुंचा दिया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमाली। दूसरी शादी का शौक शहरी को कैद कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने दूसरी शादी पर शौहर को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम को क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। मुद्दइया के वकील सलीम माइकल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत शौहर निकाह पर निकाह नहीं कर सकता। मुलजिम ने शादीशुदा होकर दूसरी शादी की, जो गैर कानूनी अमल है। इसी केस में 494 में जो अक्यूज था उसने दूसरी शादी की, पहली बीवी की मौजूदगी में एस्टर की, और उस पर फिर 213 पे FIR लॉन्च हुई। FIR लॉन्च होने के बाद अदालत में सजाद अली जमाली साहब की अदालत में ये फैसला हुआ है और मुजरिम को यानी जिसने दूसरी शादी की उसको 3 साल सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया है।
मुलजिम जोशुआ के खिलाफ महमूदाबाद थाने में पहली बीवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म पहली बीवी की दरख्वास्त पर अदालत ने दिया था। कैमरामैन कयूम के साथ मुमताज जमाली, सिटी 21। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का तबादला कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह सिंध को नया इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया है। एजाज अनवर चौहान को बलोचिस्तान इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का तबादला कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह सिंध को नया इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया है। एजाज अनवर चौहान को बलोचिस्तान इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एशिया पैसिफिक यंग एमर्जिंग लीडर अवार्ड का एजाज़ पहली बार पाकिस्तान के नाम। अवार्ड के लिए 23 एशियाई ममालिक में से सिर्फ 3 ममालिक के नुमाइंदों को मुंतखब किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी इंजीनियर अब्दुल हसीब मंसूरी ने ये कामयाबी हासिल की। आयशा आफरीन रिपोर्ट करेंगी। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक यंग एमर्जिंग लीडर अवार्ड अपने नाम कर लिया। अवार्ड हासिल करने वाले इंजीनियर अब्दुल हसीब मारूफ समाजी कारकुन है और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अब्दुल हसीब का कहना है कि एशिया के 23 ममालिक में से पाकिस्तान समेत 7 ममालिक को मुंतखब किया गया, जबकि 3 को इस अवार्ड से नवाजा गया। 23 कंट्रीज एशिया की हैं, उसमें से 7 कंट्रीज ने शॉर्टलिस्ट किया और 7 में से 3 को ये अवार्ड मिला और 3 में एक पाकिस्तान है, एक जापान है और एक इंडिया है। अब्दुल हसीब मंसूरी पाकिस्तान में आने वाली मुख्तलिफ कुदरती आफात में रज़ाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें 2005 में आने वाला खौफनाक ज़लज़ला और 2009 में सिंध में तबाही मचाने वाले सैलाब जैसे कुदरती आफात शामिल हैं। आपने कोई पाकिस्तान में या एशिया में आपने कोई एक्टिविटी की है वो है, फिर आपने कोई चैरिटी सोशल कम्युनिटी के लिए आपने कोई एक्टिविटी की है, फिर आपने पूरे एशिया पैसिफिक के लिए कोई अगर काम किया है आपने तो वो है। इस तरह की कुछ ये छोटे छोटे एवैल्यूएशन क्राइटेरिया था। अब्दुल हसीब मंसूरी इस वक्त पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मशअल राह है। इन्हीं की बदौलत बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए राहें हमवार हो रही हैं। कैमरामैन फरहान के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। मजहब, तारीख, अदब, साइंस, सियासत, मईशत और भी बहुत कुछ। शहर कायद में किताबों से इश्क करने वालों का मेला सजने को तैयार। कराची इंटरनेशनल बुक फेयर 14 दिसंबर से एक्सपो सेंटर में होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कि ये महक एक नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, कि जहाँ पे भी तालीम के लिए कहीं रुकावट पैदा हो तो वहाँ पे आप हमारा साथ देते रहें। 5 रोज़ा कराची इंटरनेशनल बुक फेयर 14 दिसंबर से एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगा। मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उर्दू अकेडमी के सदर अजीज खालिद और कुतुब मेले के कन्वीनियर वकार मतीन ने बताया कि 18वें कुतुब मेले का इफ्तिताह निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर करेंगे। इस दफ़ा हमने अंदर इंतज़ाम किया है, जो हॉल 4 में 2 साल पहले हुई थी, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला जो हॉल 4 में ही ओपनिंग होगी। तो आप लोग जगह का ज़रा ख्याल रखिएगा कि बाहर टेंट ना नज़र आए तो आप परेशान हो जाए कि हो क्या रहा। तो हॉल 4 में आना पड़ेगा आपको और वहाँ पे इंशाल्लाह आपको इंतज़ाम मिलेगा सब चीज़ों का। अजीज खालिद ने कहा कि हुकूमत को बुक पब्लिशर्स के लिए मुस्बत पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। शहर की लाइब्रेरियों की हालत ख़राब है, जिसकी जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत लाइब्रेरी के लिए क्या करती है, आप इसके ऊपर लिखें कि हुकूमत सिंध को, हुकूमत पंजाब को और दीगर जो हुकूमती ऐसी जगहें हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और मोहतरमा राना साहिबा से पूछिएगा कि वो अपने उसके अंदर लाइब्रेरीज़ के लिए क्या करके जा रही हैं कि वो दोबारा उन लाइब्रेरीज़ को ज़िंदा किया जा सके कि लोग जा सकें। मुंतज़मीन ने मजीद बताया कि कुतुब मेले में 4 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। कैमरामैन इमरान AK के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अनासी इंटरबैंक में डॉलर 202 पैसे मामूली इजाफे से 283 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये 75 पैसे पर बरकरार है। डीलर्स के मुताबिक हफ्ते के पहले रोज रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे कमी से 283 रुपये 75 पैसे तक ट्रेड हुआ और कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे मामूली इजाफे से 283 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ।
बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि कराची में सिंध के सकाफती दिन की मुनासबत से तकरीब रखी गई, जिन्हें सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया गया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से जश्न का एहतमाम किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात ने सिंधी अजरक और टोपी ज़ेब-ए-तन करके सिंध सरजमीन से मोहब्बत का पैगाम दिया। ये जो सिंधी कल्चर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें हमने डिफरेंट स्पीचेस का इनेकाद किया है, हमने डिफरेंट पोइट्रीज़ हैं। और हमारी सिंध धरती ऐसी है अमन अमान का, उसका पैगाम देंगे। और बेसिक मकसद ये है हमारा इसके पीछे कि अपने कल्चर को प्रमोट किया जाए। और आज हम लोग सिंधी कल्चर डे को प्रमोट करने के लिए स्पीच के ऑर्गेनाइजेशन की है, और ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि हमें सिंध में ही रहते हैं और हमें सिंधी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की कम्युनिकेशन मैनेजर सिद्रा मोहसिन ने कहा कि यूनिवर्सिटी सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग में पेश रहती है। देखिए, सिंध कल्चर डे बेसिकली इट्स अ डे फॉर सेलिब्रेशन। ये एक ओकेजन हम है, ये सिर्फ हम सिंध कल्चर डे नहीं, हमारे यूनिवर्सिटी में बलोच कल्चर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कल्चर डे सिर्फ एक सिम्बलाइज़ करते हैं यूनिटी और सॉलिडारिटी। और ये अगर आप सिंध ले लें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक सूबा भी सिंध है। तकरीब के इख्तिताम पर वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सिराज मेमन और रजिस्ट्रार डॉक्टर आजम ने भी शिरकत की और सूबा सिंध की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। कैमरामैन इमरान एखे के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।